friends, welcome to Olive Board. My name is Lakshmi and I'm your faculty for ESI. Whenever I start with the ESI part, I daily get one or two questions asking ma'am ki ESI की तैयारी कैसे करें, how should we deal with your economic part in the examination, especially for your RBI Grade B 2024. So let's have a look at what is coming in your examination. So we all know, आपका paper 1 which is in your phase 2 paper 1 you will be having an economic and social issue paper जिसको हम short में ESI बोल रहे हैं. So in this paper there is a 50-50 weightage of your objective as well as a subjective part. 50-50 weightage I mean total 100 marks का paper होगा आपका ESI का, जिसमें 50% paper will be objective type and 50 will be subjective or you can say descriptive. So this is the pattern of the questions or the pattern of the paper. ये जो आपके objective में 50 questions है, there will be 30 questions and you have to solve these 30 questions in minutes. How will these 30 questions be divided? 20 questions will be of 2 marks each. So in total there will be 40 marks, right? And 10 questions will be there with 1 marks each, and this will be 10 marks, and in total paper will be of 50 marks, you can say over here. Next thing is the descriptive part. If I specifically talk about descriptive part, descriptive also comes for your 50 marks. So for these 50 marks, there is 2 division. आपके 3 questions जो होते हैं वो 10 marker होते हैं. Out of these 3 questions, you have to just attempt 2. So out of these 3 questions which are 10 marker, आपको सिर्फ 2 attempt करने हैं. Similar ways, in your 15 marks also, you get 3 questions out of which you have to only attempt 2. So 15 marks से आपको you will get a total of 30 marks, and for 10 here you will get 20, and totaling this will get 50. I hope little maths you can calculate it yourself. Moving ahead, what's next? So let us focus on the syllabus of your RBI. Last year syllabus थोड़ा सा change हुआ था. There were certain topics over here that were cut down and some topics were added to your finance section, like the accounts. Now let us see what was there, what is there in your economic and social issues syllabus as of now. सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया. बट बिलीव मी, इसको जब पढ़ने बैठोगे और अगर आप एंड टू एंड पढ़ रहे हो, इट विल बी वेरी टफ फॉर यू. नो वरीज, लेट्स सिंप्लीफाई योर वर्क. Let's start a little bit about what is the differentiation between your static as well as your current part. Let's see ESI current. ESI current में you will have reports, you will have scheme, you will have economic survey, you will have budget. Other than that, there are many reports like your National Health Family Survey, NFHS. And other than that, ACER report, which is by your Pratham NGO, and other reports which come up every now and then. They are important for your examination. Also the reports which are being published by your World Bank, IMF. Last year also there was a question of on one of the report which was published by your important organization only. Now if I talk about schemes, इसकी इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल भी कम मत समझना, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो. लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, कितनी सारी स्कीम्स आपकी एग्जाम में पूछी गई हैं. नाबार्ड का ही पेपर उठा लो, आउट ऑफ 40 मार्क्स क्वेश्चन, almost 25 questions were there from your 25 marks questions were there from your schemes only. और फेज 2 में भी लगभग यही रहने वाला है. सिमिलर वे इफ आई टॉक अबाउट आरबीआई में स्कीम्स और रिपोर्ट्स जितना पूछा जाता है उतना कोई भी चीज नहीं पूछी जाती. इनको याद कैसे करना है? डेली करंट अफेयर्स कवर करते रहिए. लास्ट के एक दिन एक महीने में हम सारी स्कीम्स कवर कर लेंगे. बिलीव मी, 200-250 स्कीम. इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या होती है वो तो किसी को नहीं पता होता. बस हम लोग क्या करते हैं, हम जज करते हैं कि हाँ ठीक है, ये पिछली बार पूछी गई थी, आज इस बार शायद ये पूछी जाए, बट फिर भी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि यही स्कीम आए. तो ऑल इन ऑल आपको पेपर से पहले कम से कम 200 स्कीम्स, ओनली स्कीम्स आई एम टॉकिंग अबाउट. रिपोर्ट्स की तो अभी बात ही नहीं कर रही. रिपोर्ट से तो हमने देखा है पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में सिर्फ रिपोर्ट से आए थे, उसको छोड़ो. 200 स्कीम्स मिनिमम पेपर से पहले करके जानी है, और सिर्फ ऊपर से नहीं. वो दिन गए जब लॉन्च ईयर पूछ के खत्म कर दे रहा था, अब वो एकदम डेप्थ में पूछता है स्कीम्स को भी. लास्ट ईयर देखो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सप्तऋषि से क्वेश्चन था. तो देयरफॉर आप स्कीम्स को हल्के में नहीं ले सकते कि लास्ट में हम जाएंगे और मॉड्यूल से पढ़ के आगे निकल जाएंगे. अभी से कवर करो. यू हैव टाइम, you can do it little by little. So at least for schemes and reports I would recommend कि 8 months, कम से कम 8 months
ये तो करके ही जाना, और अभी टाइम है तो करना शुरू कर दो ताकि एंड में बर्डन ना हो। नेक्स्ट थिंग इज यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा फेब तक, नया इकोनॉमिक सर्वे बजट। गिव इट अ रीडिंग। कहाँ से रीड करना है? EIB, ERS, यहाँ पे इन दोनों की समरी आ जाती है। समरी डॉक्यूमेंट को आप चाहो तो यहाँ से रीड कर सकते हो। एल्स ऑल्सो वील बी कमिंग अप विद अ समरी ऑफ बोथ दीज। नेक्स्ट थिंग, नाउ चलो ये तो आपका करंट का पार्ट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव के लिए जो स्टैटिक पोर्शन में क्या पढ़ना, या आपका स्टैटिक की बात कर रही हूँ। करंट की तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप करंट को छोड़ के नहीं जा सकते, करंट तो बहुत इंपॉर्टेंट। पर क्या खाली करंट पढ़ने से काम होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो यस, पिछले 2-3 साल से स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। RBI का मूड करेगा तो वो यहाँ से भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट स्पेसिफिकली I have listed down some of the highlighted topics that are in your yellow, like the measurement of growth, poverty and employment generation, poverty elevation and employment generation, then sustainable development, monetary fiscal policy, balance of payments, national economic institutions. These are important. अगर आप RBI का 2016 से 18 तक का पेपर खोल, almost 10 to 11 questions were being asked from the measurement of growth chapter only. So therefore, yes, in last 2-3 years यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टिल यू कैन नेवर से कि यहाँ से आप क्वेश्चन आने लगे। नेक्स्ट थिंग, ये तो चलो ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव में व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग सब कुछ ही छोड़ जाना, बट किसको ज्यादा डेप्थ में पढ़ना। तो इफ यू हैव टू रीड मोर इन डेप्थ देन गो फॉर दीज चैप्टर, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कोई भी स्कीम अगर इसके आसपास रोटेट कर रही है, सिंपल ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी ऐसी 4 स्कीम्स बता दो विच आर बीइंग रन इन इंडिया फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्टैटिक से कुछ पता हो। इफ यू आर राइटिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज और आपको स्टैटिक ही नहीं पता है, हाउ विल यू बी एबल टू राइट इट? द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड ओवर हियर इज, इसके अलावा भी ये ESI का जो पेपर है ना, खाली आपके ESI के पेपर में हेल्प नहीं करेगा। आपको इंग्लिश में इफ यू हैव टू राइट सम बेटर एसेज, आपके इंग्लिश के एसे के कंपोनेंट में भी इट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज एसे आप जनरली देखो कहाँ से आते हैं। ऐसे कम्स फ्रॉम योर सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इश्यूज पे ऐसे रहते हैं ज़्यादातर, वुमेन एम्पावरमेंट, और मतलब थीम यही रहती है क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, यू डोंट नो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, यू डोंट नो अबाउट कॉप, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और UNFC, ये सब क्या है, बिलीव मी यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ क्वालिटी आंसर। नेक्स्ट थिंग, ESI में सोशल स्ट्रक्चर एंड इंडिया, ये एक बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव में आई डोंट फील यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पर सब्जेक्टिव में डेफिनेटली, वहां से नहीं तो ऐसे के टॉपिक में तो इसका आप यूज कर ही सकते हो, बिकॉज ऐसे में यू ऑलवेज गेट अ क्वेश्चन अबाउट दिस अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इस तरह के चार जो आपके ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, तो यू विल फाइंड दीज टॉपिक्स ऑन रेस्ट। डेफिनेटली you have time, you can devote your time. Already a course is running over here. If you want, you can enroll in that as well. Otherwise, if you can do self study, that is also great. In some days, I'll also coming up with how to actually deal with your ESI part, and we'll meet again. That's all for now, and thank you.